హాయ్ గాయ్స్, నేనైతే వీడియోస్ చేసేసి 10 days అయితే అయింది. నాకు తెలుసు ఎందుకంటే రీజన్ మనకు ఎలక్షన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇంకోటి వచ్చేసి ఎవరైతే ఉన్నారో మా ఇంట్లో పేరెంట్స్ వాళ్ళందరూ రిలేటివ్స్ అందరూ ఇంటికి రావడం జరిగింది. అందుకని చాలా అంటే వీడియోస్ చేయలేకపోయాను. అంటే చదవలేదు కాబట్టి ఇంకేం వీడియోస్ చేయలేకపోయాను. ఇంకోటి వచ్చేసి ఒక 4-5 days నుంచి మా డాడీ మా ఇంటి దగ్గరే ఉన్నారు. ఇంటి దగ్గరే ఉండడం వల్ల ఇంకా నేనే వంట అవన్నీ పనులు ఉన్నాయి కదా, ఆ పనుల్లో బిజీ ఉంటా. నైట్ టైం చదువుతున్నాను. ఇంకోటి చదివే టైంలో ఇంకా వీడియోస్ చేస్తా. అంటే ఇలా వీడియో పెట్టడం వల్ల అతనికి కూడా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది, నిద్రపోతుంటారు. నేనైతే మ్యాక్సిమం నైట్ టైంలో చదువుతున్నా. ఉదయం అంతా ట్యూషన్స్, ఇంకోటి వచ్చి ఇంట్లో పని చేసుకుంటున్నా. ఇంకా డాడీ వచ్చారు కాబట్టి నార్మల్గా నేనున్నప్పుడు అయితే ఏదైనా ఒక కర్రీ చేసుకుంటే అది నాకు 2 days అలా వచ్చేది. కానీ డాడీ వచ్చినప్పటి నుంచి ఏంటంటే, నాన్న వచ్చినప్పటి నుంచి 2 times కర్రీస్ చేయడం కానీ, డైలీ కర్రీస్ చేయాలి, ఇంకా ప్రతిదీ ఇంకా ఫ్రెష్గా ఉంచాలి కాబట్టి ఆ పనులు ఎక్కువైపోయాయి నాకు. ఇంకోటి ట్యూషను, ఇది అంటే కొద్దిగా బిజీ అయిపోయినా. స్టడీ అయితే ఏం ఆగలేదు, డైలీ ఒక 4 hours అయితే జరుగుతుంది, నైట్ టైంలో జరుగుతుంది. ఇంకా మా నాన్నకు డిస్టర్బ్ ఉంటుందని నేను వీడియోస్ అయితే చేయలేదు. ఇప్పుడు ఏమంటే కొద్దిగా వర్క్స్ నుంచి కొద్దిగా ఫ్రీ అయిపోయాను, చాలా వరకు వర్క్స్ నుంచి. ఈ రోజు నుంచి అయితే కంటిన్యూగా వీడియోస్ చేస్తాను. నేనైతే బుక్స్ అయితే డైలీ తీస్తున్నాను, కానీ ముందులాగా అంత ఎఫెక్టివ్ స్టడీ అవ్వలేదు. 4 hours 3 hours అలాగే అవుతా వచ్చింది, ఎంత ఫుల్ టైంలో ఉన్నా కానీ. అందుకని 10 days నుంచి వీడియోస్ చేయలేకపోయినా. ఇప్పటి నుంచి అయితే కంటిన్యూగా జరుగుతాయి. ఇప్పుడైతే నేను సీసాట్ చేస్తున్నాను. ఇంకా చాలా విషయాలు నేను మీతో మాట్లాడాల్సింది. నేను కొద్దిగా ముందు పైన ఫ్రీ అవుతాను కదా, అప్పుడు మీతో మాట్లాడతాను ప్రతి వీడియోలో. ఇప్పుడైతే స్టార్ట్ చేసేస్తున్నాను.
ज्ञात कीजिए। हो सकता है। और आपके पास ऑप्शन है सिकोबर, सिकोबर, वो ठीक है, अनुपात वाले थैली वाले जो सवाल थे। फिर लिखिएगा उसी में कितने टाइप हो गए थे रेशियो प्रपोर्शन में, 4 टाइप। ठीक है, लिखिएगा नेक्स्ट टाइप। इसमें एक बड़ा मतलब स्टार लगा दीजिए, मुझे भी उम्मीद नहीं कि इस बार आए, लेकिन अच्छा लॉजिकल सवाल है और वो आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो बच्चे के कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए बहुत अच्छे सवाल माने जाते हैं। देखिएगा, ए कार्टून कंटेन अ डजन मिरर, एक डिब्बे में 1 दर्जन दर्पण है। ए कार्टून कंटेन अ डजन मिरर, एक डिब्बे में 1 दर्जन दर्पण है। एक्सीडेंटली इट्स ड्रॉप्ड, दुर्घटनावश वह नीचे गिर जाता है। एक डिब्बे में 1 दर्जन दर्पण है, एक्सीडेंटली इट्स ड्रॉप्ड, दुर्घटनावश वह नीचे गिर जाता है। Then what is the ratio of breaking mirror to unbreaking mirror? तब खंडित दर्पण और अखंडित दर्पण का अनुपात क्या नहीं हो सकता? What is the ratio? Cannot, what ऐसा लिखना, what cannot be the ratio breaking or broken mirror to unbroken mirror? मतलब समझे ना प्रश्न? 1 दर्जन दर्पण है, मैं ऑप्शन दूंगा इसमें, 1 दर्जन दर्पण है डब्बे में, वो नीचे गिर गया है, तो वो कह रहा है कि खंडित और अखंडित दर्पण का अनुपात क्या नहीं हो सकता। और आपके पास ऑप्शन है 2:1, 7:5, 3:2, 3:1। कौन सा अनुपात नहीं हो सकता? ब्रोकन मिरर टू अनब्रोकन मिरर के बीच का रेशो क्या नहीं हो सकता? एक बढ़िया और खूबसूरत सवाल है। पहली बार है, तुक्का लगाना चाहें? ए आंसर, ए, बी, सी और डी। देखो बहुत अच्छा सवाल है, मतलब सवाल ऐसा कुछ नहीं कि जिसको आप कहेंगे बहुत बड़ा गणित का नॉलेज होगा तो ही उत्तर आ पाएगा, बिल्कुल नॉर्मल है। और रियलिटी में मेरे हिसाब से सीटेट में ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए जिससे बच्चे की बुद्धिमत्ता का ज्ञान होता है। मुझे एक बात बताओ कि जब ये दर्पण गिरे होंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? हो सकता है 1 ब्रेक हुआ हो और 11 अच्छे हो, या इसका उल्टा, वो बात एक ही है। तो अनुपात क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो? या हो सकता है 2 ब्रेक हुए हो और 10 ब्रेक ना हुए हो, तो अनुपात क्या होगा? या हो सकता है 3 ब्रेक हुए हो 9 ब्रेक ना हुए हो, या इसका उल्टा, हो सकता है 4 ब्रेक हुए हो 8 ब्रेक ना हुए हो, या फिर 5 ब्रेक हुए हो 7 ब्रेक ना हुए हो, या हो सकता है कि 6 ब्रेक हुए हो और 6 ना ब्रेक हुए हो, या इसका उल्टा। मतलब इतने ही रेशियो हो सकते हैं, उसमें भी लॉजिक ढूंढते हैं। इन रेशियो का जोड़ चेक करना, जोड़ कितना आ रहा है? क्या खासियत है
सभी 12 को डिवाइड, मतलब वही रेशो संभव होगा जो 12 को डिवाइड कर सकेगा उस रेशो का सम। क्या ये पॉसिबल है? अरे ये डिवाइड, ये डिवाइड, ये डिवाइड, मतलब किस अनुपात में ये नहीं हो सकता? अब देखो, मैं जो समझाना चाह रहा हूं जरा उस पर गौर करो, क्या बात और कंसेप्ट है। इधर ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बताना चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए कमरे में कुछ लड़के और लड़कियां हैं, मैंने बोल दिया कि कमरे में कुल 20 लोग हैं, तो कोई लड़का ऐसा होगा कि 1.2 लड़के और 3.4 लड़कियां। अरे ऐसा हो सकता है, मतलब यहाँ तो होल नंबर भी हो सकते हैं ये लोग। अगर 20 लड़के लड़कियों की बात है तो या तो लड़के हो सकते हैं 10, लड़कियां 10, 12, 8, 11, 9, ऐसे कई हो सकते हैं ना, पर वो होल नंबर में ही होंगे। आप यहाँ दशमलव का यूज, अगर ये सवाल दूध और पानी के मिश्रण का होता, मैं जो समझाना चाहता हूँ जरा उस पर गौर करिए कि दूध और पानी का 12 लीटर का मिश्रण है, बताइए दूध और पानी का अनुपात क्या नहीं हो सकता या क्या हो सकता है? तब आप इसमें कुछ भी गलत नहीं कह सकते, सब अनुपात हो सकते हैं। ये भी हो सकता है क्योंकि 12 लीटर में 3/5 का मतलब हुआ कि 7, 24, 7.2, ये भी अमाउंट में पानी हो सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जहां मात्राओं की बात आती है, क्वांटिटी, दूध और पानी, अलग अलग टाइप के मेटल, वहां पर रेशो कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जहां नंबर्स की बात आती है, क्वांटिटी की जगह पर बात आती है एक प्रकार से उनके संख्याओं की, वहां दशमलव में कोई बात नहीं हो सकती। फिर वो दर्पण की बात हो, किसी कमरे में लड़के लड़कियों की बात हो, या फिर कहा जाए कि किसी व्यक्ति के पास 20 अंडे हैं, कुछ दिनों के बाद कुछ अंडे खराब हो गए, बताओ अच्छे और खराब अंडों का अनुपात क्या नहीं हो सकता? तो वहां पर जो डिवाइड दशमलव में आएगा वो अनुपात नहीं हो सकता। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं जो बताना चाह रहा हूं? रियलिटी में जहां पर मात्राओं की बात आती है वो कुछ भी अनुपात में हो सकते हैं, लेकिन जहां पर संख्याओं की बात आती है वे केवल होल नंबर में ही हो सकते हैं, जिनको हम काउंट करने वाली बात कर रहे हैं। अरे थीम समझ में आ रही? मैं जो क्वेश्चन का कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं, उत्तर तो आराम से आ जाएगा ये तो आप। लेकिन ये हम क्यों कह रहे हैं कि ये रेशो क्यों नहीं, बाकी अभी तक तो ऐसा कभी था ही नहीं, कुछ भी रेशो ले लेते थे हम। तो जहां पर भाई लड़के लड़कियों का अनुपात, आप कह सकते हैं कि 12.8 लड़के और 7.2 लड़कियां हैं, या तो लड़की है या नहीं, लड़का है या नहीं। वहां दशमलव वाली कोई बात, आंशिक बातें वहां पर नहीं हो सकती। बताइए भला, किसी जगह पर, मतलब इसको कहानी के रूप में भी बनाया जा सकता है कि किसी जगह पर 15 लोग पहुंचे जिसमें कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष है, क्या रेशो महिला पुरुषों का नहीं हो सकता? और कितने लोग पहुंचे हैं? 50। महिला पुरुषों का कौन? क्यों? क्योंकि वो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है ऐसे सवाल अगर पूछे यूपीएससी तो वो बच्चे की माइंड स्टेटस को भी अच्छा चेक कर पाएंगे, और वो क्वेश्चनों का आरोप भी नहीं लगेगा कि आपने सवाल कठिन पूछे, लॉजिकल सवाल ज्यादा पूछे हो जाएगा इस टाइप में। मतलब इसमें कई वेराइटी
है वो एक ही चीज है, वो कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा इस टाइप से। ये दूध पानी का पूछा जाता तो सारे हो सकते हैं, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि दूध 3.4 लीटर भी हो सकता है और 3.5 लीटर भी हो सकता है। मतलब उसके हम काउंटिंग की कोई बातचीत नहीं, वो मात्राओं की बात है। जैसे सोने और चांदी का एक मिश्र धातु बनाया गया, तो सोने और चांदी का मिश्र धातु 15 किलो का है, कौन सा अनुपात हो सकता है? सारे। भाई आप सोने को 2.4 ग्राम में किलोग्राम में ले सकते हैं, और क्या आप पुरुष और महिला को 2.4 और 3.8 में ले सकते हो? इसलिए वही अनुपात होगा जो पूरा पूरा डिवाइड करता होगा उस रेशो का सम। कंसेप्ट क्लियर हो गया है? अगला टाइप लिखना, रेशो of incomes of A and B is 2:1। A और B की आय का अनुपात 2:1 है। And they is paid in the ratio 5:3 तथा इनके खर्च का अनुपात 5:3 है। रेशो इनकम ऑफ ए एंड बी इज 2:1। ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है, इनके खर्च का अनुपात 5:3 है। एंड द सेविंग इन द रेशो 4:1 और इनके बचत का अनुपात 4:1 है। If the total monthly saving of both A and B is ₹5,000, यदि A और B की कुल मासिक बचत 5,000 रुपए हो, यदि A और B की कुल मासिक बचत 5,000 रुपए हो, if the total monthly saving of A and B are ₹5,000, the monthly income of B is, तब B की आय ज्ञात कीजिए। तब B की आय ज्ञात कीजिए। रेशो आपको इनकम का 2:1 दिया हुआ है, खर्च का रेशो कितना दिया है 5:3 और बचत का रेशो है 4:1। मैं हल करूं, नया सवाल है। सबसे पहले तो आप जानते होंगे कि सेविंग क्या होता है। सेविंग बचत, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आय माइनस व्यय बराबर क्या होता है बचत। तो मान लेते हैं कि ए ने रेशो क्या दिया इनकम का, इनका 2:1। तो हमने माना कि इनका जो इनकम होगा वो ओरिजिनल 2x होगा ए का, क्योंकि कोई ना कोई तो मल्टीप्लाई होगा, 2 रुपए और 1 रुपए तो कमाई थोड़ी होगी, 2,000 20,000 कुछ ना कुछ तो होगा। और बी की इनकम मान ली हमने x, 1x मतलब x, कोई दिक्कत? बताइए एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या था 5:3। अब ये x के मल्टीप्लाई में नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा कौन सा महान शख्स है इस दुनिया में जो 2x कमाए 5x खर्च करे और फिर भी बचत करके दिखा दे। मतलब उससे कोई छोटा नंबर का मल्टीप्लाई होगा या कोई भी नंबर का होगा, लेकिन वो x तो नहीं। तो मैंने माना कि a की खर्चे 3y के हैं, सॉरी 5y के हैं, ये पहला x a का है और इसके 3y के हैं।
अब मैं इक्वेशन बना रहा हूं तो ए के लिए मुझे बताइए कितना कमाया ए ने, कितना खर्च किया, कितना बचा लिया। ये कैसे? 5,000 की बचत थी, 4 और 1 के अनुपात थी, मतलब 1 की 4,000 की बचत होगी और 1 की, यही था ना अनुपात, 4:1 और टोटल बचत 5,000 की। बताइए बी के लिए इक्वेशन क्या बनेगा? x माइनस 3y। अब क्लास 10 को याद करिए, अगर किसी को भी खत्म करना है, आपको इनकम चाहिए, y को खत्म करना है, आपको एक्सपेंडिचर खत्म करना है, तो उसको इक्वल कर दीजिए। नहीं, केवल चिन्ह ही नहीं बदलना है, पहले इक्वल करना होगा ना। तो y को यहाँ पर ऐसा कोई नंबर लाओ जो 3 और 5 दोनों के मल्टीप्लाई में हो, 15। तो यहाँ पर आपको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 लाने के लिए, और यहाँ पर कर दीजिए 10x 15y 12,000, 5x 15y 5,000। अब आप साइन बदल दीजिए, माइन कहां पर से ये मल्टीप्लाई हुआ ना, सॉरी ये 6x, ये 6x, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, बचा x, कितना आ गया? इसका मतलब x की वैल्यू 7,000 है, तो 2x की वैल्यू बताइए क्या पूछा गया था, तो b की आय कितनी होगी? 7,000। ये किताबी तरीका है, दूसरा तरीका देख लीजिए। पर दूसरा तरीका वही बता रहा हूं, ट्रिक्स है, और ट्रिक्स में थोड़ी सी बदमाशी ये होती है कि वो कभी लागू होगी या नहीं कह नहीं सकते। अब मैंने जो ट्रिक्स बनाई वो मैंने कई सवालों में लागू किए, उत्तर आ ही रहे हैं, लेकिन मुझे अभी तक उस ट्रिक्स का लॉजिक नहीं समझ आया। कभी कभी ऐसी भी चीजें हो जाती हैं। मुझे बताइए क्या रेशो था कमाई का, खर्च का और बचत? एक की वैल्यू कितनी थी? 1,000। 3 की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू 1,000 है तो 4,000। यहीं पर लागू नहीं हो रही फिर तो ट्रिक्स, सही है, मतलब नहीं लागू हुई सवाल। 5 और 4 9,000 होना चाहिए था बी की कमाई, और 4,000 आएगा ही नहीं हो रही ट्रिक्स लागू। मैं दिखाऊंगा अगला सवाल जहां मैंने ट्रिक्स हल किया था। हाँ, तो मतलब मैकडॉन की चक्कर में रुके हुए नहीं, मैं दिखा रहा हूँ ना, अभी दिखा देता हूँ, एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ जिसमें ट्रिक से उत्तर आता है। मैंने इसलिए तो कहा कि मैं जो ट्रिक्स लागू करूँ तो उसका लॉजिक समझ में नहीं आया मुझे आज तक, लेकिन वो लग रही थी बहुत जगह पर, यहाँ नहीं लगी। अब एक सवाल ट्राई करते हैं, सारे सवाल पहले से नहीं, मैं कुछ सवाल नए भी लाता, कुछ हर दिन नए 1-2 सवाल लाने पड़ते ताकि मेरे अंदर वो मतलब रिजिडिटी ना आ जाए। तो कई बार नए सवाल लाने पड़ते, अचानक कुछ इंट्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि और सीखा जा सके। ऐसा मत सोचिए कि हर सवाल नए सवाल आपके इसी बैच में लगभग मेरे हिसाब से 40 सवाल नए आए हैं इस बैच में, तो रिजिडिटी को खत्म करने के लिए नयापन तो लाना ही पड़ेगा। हाँ, शीट के सवाल मैक्सिमम मेरे लगाए हुए हैं, शीट के सवाल ट्राई करिए सेम पैटर्न पर। लीजिए यूपीएससी वर्ष 2000 का प्रश्न है। द मंथली इनकम ऑफ कोमल एंड आशा आर इन द रेशियो 4:3। कोमल और आशा की मासिक आय 4:3 में है। द मंथली इनकम ऑफ कोमल एंड आशा आर इन द रेशियो 4:3। कोमल और आशा की मासिक आय 4:3 है। द मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 3:2। इनकी मासिक बचत का सॉरी
इनके मासिक खर्च का अनुपात 3:2 है। इनके मासिक खर्च का अनुपात 3:2 है। If both save ₹6,000 per month, यदि दोनों 6,000 रुपए प्रति माह बचाती हो, यदि दोनों 6,000 रुपए प्रति माह बचाती हो, then what is the income of कोमल? तब कोमल की आय ज्ञात कीजिए। दूसरी मेथड से निकालना है। नहीं, मैं भी अगला सवाल भी दूंगा, डिफरेंट आएगा अनुपात। आइए फिर से देख लेते पहले मेथड से। बताइए किस रेशो में वो कमाई कर रहे थे? 4:3। मतलब आपने मान लिया इसे 4x और इसको मान लिया, ठीक है। खर्चा मतलब 3y माइनस कर दो डायरेक्ट, 2y। दोनों की बचत, आपको इनकम चाहिए तो आपको एक्सपेंडिचर की वैल्यू करनी है। तरीका क्या है? इक्वल करना, 3 और 2 दोनों का कॉमन मल्टीप्लाई। यहाँ पर 6 लाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 6 लाने के लिए ये हो जाएगा 8x, 6y, 12,000। ये हो जाएगा 9x, 6y, 18,000। माइनस प्लस माइनस, माइनस x माइनस 6,000। हम कहेंगे कि x की वैल्यू कितनी है? 6,000। किसकी आय बतानी थी? 4 गुना में 6,000, ठीक है। आइए अब मिनट तो जिंदगी आपको इजी लगे। किस अनुपात में थी कमाई? खर्च बचत, एक अनुपात है। एक की वैल्यू कितनी है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? अरे 12,000। 6,000 का खर्च, 6,000 की बचत, 12,000 का खर्च, कितना कमाती होगी? एक की वैल्यू 6,000, 3 की वैल्यू 18,000, 6,000 की बचत, 18,000 का खर्च, कमाती कितना होगी? फिर से ध्यान दो, ये बचत का अनुपात दिया और बचत की वैल्यू दी हुई है। बचत दिया ना कि 6,000 रुपए बचत है उनकी, तो एक अगर बचत, एक की वैल्यू 6,000 के बराबर है तो 2 की वैल्यू 12,000। तो 12,000 वो जो भी लादी है वो खर्च कर रही है और 6 बच रहे हैं, तो 12 का खर्च, 6 की बचत, टोटल कमाई 18,000। और ये नहीं निकाल रहे हैं, ये तो हम बस दिखा रहे हैं। मेनली हम निकाल रहे हैं कि बचत प्लस खर्च बराबर इनकम। 6,000 रुपए की सेविंग तो 18,000 रुपए का खर्च, क्योंकि एक की वैल्यू 6 थी तो 3 की वैल्यू 18 हो, तो 18 और 6 24। ये कई जगह लगता है पर मैंने कहा मुझे इसका कोई लॉजिक अभी तक समझ में नहीं आया।
मैं आपको एक और सवाल दिखा रहा हूं जिससे आपको और क्लियरिटी आएगी कि और लगता है, जैसे आपको लग रहा होगा कि सर सब जगह डिफरेंस एक एक का था इसलिए लगा। मैं आपको एक और सवाल दे रहा हूं, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 3:2। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 5:3 और इनके खर्च का अनुपात 5:3 है। And ratio of their expenditure is 5:3. If each save rupees 1500, यदि प्रत्येक 1500 रुपए की बचत करता हो, if each save rupees 1500, then what is the income of A and B? तब A और B की आय ज्ञात कीजिए। अब आप उससे भी कर सकते हैं, आपको दिखेगा कि उत्तर यहां भी आएगा। छह हजार और 9,000 या 6,000 और 8,000? 9,000। 9,000 और 6,000। देखिए, पहले तो मेथड से आते हैं। ये लिखा होगा आपने 3x और 2x, ठीक है। खर्चा 5y, बचत तो इक्वल कर लीजिए। यहां किसका मल्टीप्लाई और यहां पर तो ये 9x 15y 4500, फिर 10x 15y 75, माइनस प्लस माइनस। x की वैल्यू 3000, 6,000 और 9,000 की कमाई। आइए मेंटोस वाले से देखते हैं। 3:2, 5:3, 1:1। 1 की वैल्यू कितनी है? 3 की वैल्यू कितनी होगी? 4500 खर्च के 1500 बचा लिए, कितना कमाया होगा? 1 की वैल्यू 1500 है, 5 की वैल्यू 7500, कितना कमा लिया? आप वो देख लीजिए, बाकी मैंने मेथड तो दिया। मैं एक्स्ट्रा मेथड इसलिए देते रहता हूं ताकि आपको पता रहे ऐसे भी हो सकता। मैंने कहा ना कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ना लगे, जैसे आज मेरे साथ ही हो। नहीं, इसमें अलग से भी उत्तर आए हैं, अलग सेविंग से रेशियो सेविंग रहेगा तब भी उत्तर आ जाते हैं। हाँ हाँ, बट ये तो कंसेप्ट है, ये कभी नहीं बदलने वाला। हाँ, अब आपकी अपनी अपनी इच्छाएं है। देखिएगा आखिरी टाइप रेशियो प्रपोर्शन का, सिक्को वाला तो हो गया था ना हमारा, ठीक है। फिर तो केवल एक ही बचा है जिसमें दो अलग अलग मिश्रणों को मिलाया जाता है। ये थोड़ा कठिन सवाल होता है, देखिएगा। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर
in the mixture B, while in the mixture B, ratio of milk and water is 4:3, जबकि मिश्रण B में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। If equal quantity of mixture A and B are mixed, यदि A और B की समान मात्राओं को मिलाया जाए, यदि A और B की समान मात्राओं को मिलाया जाए, then what is the ratio of milk and water in new mixture? तब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। सवाल सभी को समझ में आ गए ना? लेकिन आइए देख लेते हैं ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, ऐसा मत कर देना जैसे कई लोगों को लग रहा होगा सर जीवन बड़ा सरल है, 3 और 4 7 अनुपात 5 कितना नहीं। आइए देखते हैं। मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको पहली क्लास में ये बताया था कि 3:2 का मतलब दूध कितना है? 3/5। तो जब आप दूध और मिश्रण को मिलाएंगे दोनों का, तो उस पहले मिश्रण का कितना दूध मिला होगा, मतलब कितना दूध वहां आया होगा? 3/5 था। और दूसरे का दूध कितना आया होगा? ये टोटल मिल्क है। देखो, उसको 3 मिश्रण में मिलाने तो घबराओ नहीं। सारे मिश्रणों के दूध एक तरफ ले लो, सारे मिश्रणों का पानी एक तरफ ले लो, निकाल दो रेशो। गलती कहां करता है स्टूडेंट? डायरेक्टली 3 और 4 7, ये नहीं चलेगा। आप उसको हिस्सा देखे ना, कितना हिस्सा दूध आया। 3/5 हिस्सा दूध आया, 4/7 हिस्सा दूध आया। अगर एक और मिश्रण होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम उसका दूध और ऐड कर लेते। नीचे पहले में से पानी कितना आया और दूसरे में से, अब आपको इसे सॉल्व करना है तो एलसीएम आ जाएगा 35, या आ जाएगा 7 गुना में 3 21 20 डिवाइड बाय, नीचे भी एलसीएम 14 15, ये कैंसिल हो जाए, आंसर आएगा। अब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 41:29 होगा। कोई कठिन नहीं है, मतलब रियलिटी में अगर वो 3 भी मिक्सचर दे दे तो आपके लिए सवाल सिंपल है। आप पूरा दूध एक साथ ले लीजिए, पूरा पानी एक साथ ले लीजिए और रेशो निकाल दीजिए। ऐसे सवालों में वो, जैसे यूपीएससी ने क्या बदमाशी की थी, इन दोनों मिश्रणों को मिलाया और आधा मिश्रण फेंक दिया। तो आधा फेंको, थोड़ा फेंको, उससे रेशो पर कोई प्रभाव थोड़ी पड़ेगा। उससे कंफ्यूज नहीं होना है, तब भी रेशो वही रहने वाला है। करवाएंगे। इसमें कई बार सवाल ऐसे कठिन था, कई बार सवाल ऐसा आ जाता है, मैं बता दे रहा हूं कि मिल्क और वाटर के मिश्रण में, पहले मिश्रण में मिल्क 75% है, लिख लीजिए। एक सिंपल सवाल जो 2018 में यूपीएससी में आया था, कर ही लीजिए, इसी टाइप पर बेस्ड था और वो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा इजी था। देखना, 2 मिक्सचर of A and B contain milk 75% and 50% respectively. दो मिश्रण
ए और बी में, दो मिश्रण ए और बी में दूध क्रमशः कई बार सवाल ऐसा आ जाता है, मैं बता दे रहा हूं कि मिल्क और वाटर के मिश्रण में पहले मिश्रण में मिल्क 75% है, लिख लीजिए। एक सिंपल सवाल जो 2008 में यूपीएससी में आया था, कर ही लीजिए, इसी टाइम पर बेस्ट था और वो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा इजी था। देखना, टू मिक्सचर ऑफ ए एंड बी contain milk 75% and 50% respectively। दो मिश्रण ए और बी में, दो मिश्रण ए और बी में दूध क्रमशः 75 और 50% है। तो ये अंडरस्टूड हो गया कि बचा हुआ क्या होगा, पानी। दो मिश्रण ए और बी में दूध क्रमशः 75 और 50% है। इफ इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ मिक्सचर आर मिक्स्ड, यदि दोनों मिश्रण की समान मात्राओं को मिलाया जाए। Then what is the ratio of milk and water in new mixture? तब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा यदि दोनों मिश्रण की समान मात्राओं को मिलाया जाए? तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ये यूपीएससी ने पूछा था। एक जगह पर पूरा दूध लिख लीजिए, एक जगह पूरा पानी करके रेशो निकाल लिया। आया हुआ है 2018 या 19 का सवाल। फाइव टू थ्री आ रहा है, चेक करिए क्या आ रहा है। 3/4 आ रहा है, मतलब दूध कम और पानी ज्यादा। अरे दो मिक्सचर को मिलाने का लॉजिक क्या सिखाया मैंने? एक मिश्रण का दूध, दूसरे मिश्रण का दूध, तीसरे मिश्रण का दूध, चौथे मिश्रण का दूध पूरा एक साथ डिवाइड बाय पहले मिश्रण का वाटर, दूसरे मिश्रण का वाटर, तीसरे का वाटर, चौथे का वाटर, और निकाल दो रेशो। रेशो में बदलने की जरूरत ही नहीं, बहुत इजी सवाल है ये तो। उल्टा बताइए, पहले में कितना मिल्क है? 75 लो सीधा। दूसरे में, पहले में वाटर, दूसरे में 125/75, आंसर आएगा 5:3। आप रेशो में बदलेंगे तो भी उत्तर आएगा, ऐसा नहीं कि उससे उत्तर नहीं आएगा, लेकिन उससे लेंथी हो जाएगा सवाल। ये तो डायरेक्ट ही था ना, परसेंटेज दे दे तो सीधा लिख दो। अगर परसेंटेज है तो फिर तो और भी सवाल सिंपल हो गया, कर पाएंगे इसमें। और अभी इसमें एक और सवाल बनता है कि एग्जामिनर हमें ये कह देगा कि हमने इन दोनों को मिलाया, हमें नहीं पता किस अनुपात में मिलाया, लेकिन हमें जो मिक्सचर मिला उसका अनुपात ये था। तो बताइए उन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया गया होगा? उसका जवाब हम देंगे एलिगेशन के चैप्टर में। फैक्टर डालिए, एलिगेशन, मिश्रण। चैप्टर का नाम भी मिश्रण है और चैप्टर भी रियल में मिश्रण ही है। 5 चैप्टरों का मिश्रण है ये टॉपिक। इसमें प्रॉफिट लॉस के सवाल भी आते हैं, इसमें रेशियो प्रपोर्शन के सवाल भी आते हैं, इसमें एवरेज के सवाल भी आते हैं। अगर याद हो मैंने करवाया था n1x1 + n2x2, और इसी में टाइम देंगे एलिगेशन। तो बताइए उन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात
मिश्रण है और चैप्टर भी रियल में मिश्रण ही है। 5 चैप्टरों का मिश्रण है ये टॉपिक। इसमें प्रॉफिट लॉस के सवाल भी आते हैं, इसमें रेशियो प्रपोर्शन के सवाल भी आते हैं, इसमें एवरेज के सवाल भी आते हैं। अगर याद हो मैंने करवाया था n1 x1 plus n2 x2। और इसी में टाइम डिस्टेंस के सवाल भी आते हैं। एक सवाल था एक व्यक्ति कुछ दूरी पैदल और कुछ दूरी साइकिल पर चलता है। तो रियलिटी में 5-6 टॉपिकों का मिक्स्ड फॉर्म है। तो आज हम उस टॉपिक को रियल में समझ रहे हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले तो एलिगेशन कहाँ यूज होगा? जहां हमें ऐसा लगे कि दो अलग अलग चीजों को मिलाकर हमें एक ऐसी चीज बनानी है जो दोनों के बीच की होगी। जैसे एक उदाहरण मैंने बताया था कि कोई आपका मित्र है जो दुकान चलाता है, उसने कहा भाई मेरे दोनों ही घी नहीं बिक रहे। हमने कहा कौन से दोनों घी? उसने कहा एक घी 600 रुपए के भाव का है, लोग कहते हमारी खरीद से बाहर का है, और एक 100 रुपए का है तो वो कहते कि ये तो डालडा है। वनस्पति घी, वेजिटेबल वाला जो घी आता है, तो लोग ले नहीं रहे। तो आपने उसे सजेशन दिया कि दोनों को मिला दो और 400 या 300 के भाव में बेच दो। अब उसने सवाल किया इसमें कितना मिलाए कि 300 का भाव बन सके। 240 का भाव बनाना है तो इसमें कितनी क्वांटिटी मिलाई जाए? तो आपको याद आना चाहिए कि इसका जवाब केवल दे सकता है एलिगेशन। एलिगेशन में एक तरफ लिखा जाता है चीपर सस्ता, एक तरफ लिखा जाता है डियरर महंगा, और एक तरफ लिखा जाता है मीडियन जो आप चाहते हैं। अगर चीपर की क्वांटिटी चाहिए तो डियरर में से मीडियन को माइनस कर दीजिए, ये आपको इसकी क्वांटिटी बता देगा। अगर डियरर की क्वांटिटी चाहिए तो मीडियन में से चीपर को माइनस कर दीजिए, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। पर ये उत्तर हमेशा अनुपात में आएगा, क्वांटिटी में नहीं। इसका मतलब आपको क्वांटिटी निकालनी है तो उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चीपर डियरर, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा उधर चीपर ही रखें। अगर आपने उधर डियरर रखा तो उससे कोई चेंज नहीं होगा, ये भी पलट जाएगा, उससे उत्तर में कोई बदलाव नहीं आता है। याद रखोगे बस कि जो पहला दिया गया है उसको छोड़कर डिफरेंस आपको यहां देना है, ठीक है? अब मैं इसके वेराइटीज बता रहा हूं कि कहां कहां यूज होता है। पहला तो जनरल सवाल जिसके बेसिस पर ये पूरा चैप्टर बनता है, टाइप 1। ₹60 किलो, 60 रुपए किलो के चावल किस अनुपात में 80 रुपए प्रति किलो के चावल में मिलाए जाएं? इन व्हाट रेशो 60 rupees per kg rice must be mixed? In what ratio 60 rupees per kg rice must be mixed? In 80 rupees per kg rice? 60 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को किस अनुपात में 80 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल में मिलाया जाए, so that 60 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को किस अनुपात में 80 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल में मिलाया जाए, so that the mixture be worth ₹68, ताकि मिश्रण को 68 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा जा सके, ताकि मिश्रण को 68 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा जा सके। 3:2। अब ऐसा सवाल आ जाए तो एग्जाम हॉल में आइडेंटिफाई इजीली हो जाएगा। इन सवालों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आइडेंटिफिकेशन की। बताइए क्या लिखा आप लोगों ने? एक तरफ, दूसरी तरफ एवरेज। आप इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, इसका डिफरेंस क्या रेशो आएगा?
भाव वाला राइस था उसने वो 30 किलो लाया है, तो 80 वाला कितना लाना पड़ेगा? 20 किलो। तभी जाकर आप मिक्सचर बना पाएंगे, क्योंकि रेशो क्या होना चाहिए? तो हम जो उत्तर निकालेंगे वो रेशो में होगा। अगर वो क्वांटिटी पूछता है तो जैसा वो क्वांटिटी देगा उससे कंपेयर कर देना। कर पाएंगे इसमें? एक ट्राई फिर करिए अभी। इन व्हाट प्रपोर्शन मस्ट शुगर एट रुपीज 3.10 पर केजी, 3 रुपए 10 पैसे प्रति किलोग्राम की चीनी मिलती नहीं अभी, लेकिन प्रश्न है, 3 रुपए 10 पैसे प्रति किलोग्राम की चीनी किस अनुपात में 3 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम की चीनी में मिलाएं? 3 रुपए 10 पैसे प्रति किलोग्राम की चीनी किस अनुपात में 3 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम की चीनी में मिलाएं? In what proportion must sugar at rupees 3.10 per kg be mixed with sugar at rupees 3.60 per kg? 3 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम में मिलाएं। 3 रुपए 10 पैसे प्रति किलोग्राम की चीनी किस अनुपात में 3 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम में मिलाएं, ताकि मिश्रण को 3 रुपए 25 पैसे प्रति किलोग्राम में बेचा जा सके। So that the mixture worth rupees 3.25 per kg, ताकि मिश्रण को 3 रुपए 25 पैसे प्रति किलोग्राम में बेचा जा सके। 7:3। हाँ बिल्कुल, अभी आ रहे ना उस पे, तीसरा सवाल उसी में आएगा। बताइए सस्ता क्या था? महंगा, एवरेज, डिफरेंस आया 0 पॉइंट, डिफरेंस आया 0 पॉइंट, दशमलव हटा दीजिए, दोनों का रेशो 5 से कैंसिल कर दिया, 7:2, मतलब 7 किलो ये लेकर आ जाइए, 3 किलो ये लेकर आ जाइए, आपका आंसर वही आएगा जो आप चाहते हैं। तो ये तो पहले टाइप के सवाल है, तो बिल्कुल दिख ही जाते हैं कि ये सवाल किससे हल होंगे, एलिगेशन। अब हम इसमें वैरायटी देख रहे हैं जहां आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सवाल किसका है, एलिगेशन का। देखना तीसरा नहीं, टाइप अभी उसी में रहने दीजिए, क्योंकि पूरे एलिगेशन में एक जैसी सवाल है। A man buy, sorry, a merchant has 100 kg of sugar. देखिएगा प्रश्न, a merchant has 100 kg of sugar. एक दुकानदार के पास 100 किलोग्राम चीनी है। एक दुकानदार के पास 100 किलोग्राम चीनी है। Part of which he sells 7% profit. इसका कुछ भाग उसने 7% लाभ में बेचा। Part of which he sells 7% profit. इसका कुछ भाग उसने 7% लाभ में बेचा। And the rest at 17%, और शेष भाग 17% लाभ में, और शेष भाग 17% लाभ में। He gained 10% on the whole. इसे कुल 10% का लाभ हुआ। He gained 10% on the whole. इसे कुल 10% का लाभ हुआ। How much he sold at 17% profit. तब 17% लाभ में उसने कितनी वस्तुएं बेची हैं? How much he sold at 17% profit. तब 17% लाभ में
10 भाग किसका? ये 10 कहां से लाया मैंने? दोनों का अनुपात का। हम कहेंगे कि 30 किलोग्राम चीनी उस महोदय ने 17% प्रॉफिट पर बेची होगी और बची हुई 70 किलोग्राम चीनी 7% के प्रॉफिट पर। तो हम 7/10 निकाल। याद आना चाहिए कि सवाल किसका है। मैं बता रहा हूं सवाल कठिन नहीं है, आइडेंटिफाई करना। क्योंकि अभी तो हम चैप्टर वही पढ़ रहे तो आप सबको पता है कि हाँ यही करना है। वहां तो सवाल मिक्स्ड रहेगा नहीं है। तो याद रखना जहां 3 चीजें मिले, सस्ता, महंगा और उनका एवरेज। एक ट्रांस फिर करिए। ए मैन बाय 2 हॉर्सेस, एक आदमी 2 घोड़े खरीदता है फॉर ₹1350। एक आदमी 2 घोड़े खरीदता है 1350 रुपए में। मतलब खिलौना समझ लीजिए। A man buy 2 horses for ₹1350 and sell one so as to lose 6%. एक पर उसे एक आदमी 2 घोड़े खरीदता है 1350 रुपए में, उन्हें बेचता है, एक पर उसे 6% की हानि होती है और दूसरे पर 7.5% का लाभ। And sell one so as to lose 6% and the other so as to gain 7.5%. एक पर उसे 6% का लाभ होता है, दूसरे पर 7.5% की हानि होती है। 6% की हानि होती है और दूसरे पर 7.5% का लाभ होता है। On the whole, he neither gain nor lose. इस पूरी प्रक्रिया में उसे ना तो कोई लाभ होता है ना हानि। On the whole, he neither lost nor gain. इस पूरी प्रक्रिया में उसे ना तो कोई लाभ होता है ना हानि। What does first horse cost? तब पहले घोड़े की कीमत ज्ञात कीजिए। ₹750। मेनली पहचान हो पा रही है सस्ता महंगा। अगर लॉस है तो माइनस में लीजिए या फिर 94 ले लीजिए। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, बताएं सस्ता क्या था? अरे सस्ता क्या था? या तो -6 ले लीजिए या 94 भी ले सकते हैं। ये क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि प्रॉफिट लॉस का मेन कंसेप्ट ही था कि प्रॉफिट लॉस सीपी पर होता है और सीपी से ही तुलना की जाती है। 6% का लॉस मतलब उसको 94 ही मिला होगा। 7.5% का प्रॉफिट या 107 ओवरऑल कोई प्रॉफिट लॉस नहीं। या ये समझ में आ रहा है? मैं ऑब्लिक करके या 2 अलग अलग बनाऊं। आप माइनस प्लस लेंगे तो 0 ले लेना, क्योंकि 0 मतलब कुछ भी नहीं आया हाथ में। और अगर आप 94, 100, 7.5 और 100 लेंगे तो फिर आपको यहाँ 100 लेना पड़ेगा, क्योंकि आप 100 से कंपेयर कर रहे हैं।
इधर 20 पैसा कॉइन और 50 पैसा कॉइन, जो या तो 20 पैसों के सिक्के हैं या 50 पैसों के, that are either 20 पैसा कॉइन और 50 पैसा कॉइन, जो या तो 20 पैसों के सिक्के हैं या 50 पैसों के। Find out how many 20 पैसा कॉइन are there in the total amount। तब बताइए कि थैले में 20 पैसों के कितने सिक्के हैं। तब बताइए कि थैले में 20 पैसों के कितने सिक्के हैं। ये वो सवाल है जिसे मैं 1 2 नहीं 5 मेथड से हल करके दूंगा, आप जिसे पसंद करें वो चुन ले। ऐसा रेयरली होता है कि एक ही प्रश्न की 5 तरीके। कर दूं? देख लीजिए, पहला तो एलिगेशन पढ़ रहे तो एलिगेशन से शुरू करते हैं। सस्ता क्या है? 20 पैसे। महंगा? 50 पैसा। चलो इतना तो समझ में आ गया, 20 पैसा 50 पैसा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एवरेज, भाई अगर एवरेज निकाले तो एवरेज कैसे निकालते? टोटल पैसे कितने हैं? 36 रुपए 90 पैसे, मतलब 3690 पैसे हैं। कितने सिक्कों के? 90 सिक्कों के, मतलब एवरेज सिक्के की प्राइस कितनी है? 41। तो वो एवरेज कितना कॉम्बिनेशन होगा फिर? 9 21 3:7। कौन से सिक्के चाहिए आपको? 3/10। किसके 3/10? हम कहेंगे कि यहाँ 27 सिक्के 20 पैसों के होंगे, क्योंकि पहला मेथड इसलिए एलिगेशन था क्योंकि चैप्टर एलिगेशन है। दूसरे मेथड पर आइए, जो बिना कागज पेन का है। मुझे बताओ कि इस थैले में पूरे सिक्के 50 पैसों के होते हैं, पूरे सिक्के मान लीजिए 50-50 पैसों के ही सिक्के हैं पूरे, 90, कितने रुपए बनते? 45, मतलब 4500 पैसे बनते। यही होता ना। एक बदमाश बच्चा आया, उसने 50 पैसा निकाल के जेब में रख दिया, काउंटिंग ना बिगड़े 20 पैसे का डाल दिया। कितने की चोरी कर रहा है? 2 सिक्के बदल दिए तो किसी ने कहा 90 पैसे बदल दिए, 3 सिक्कों का हेरफेर हुआ है। यहां तो 3690 ही आए हैं, 810 पैसों की कमी आ रही है। एक चेंजेस में 30 पैसों का चेंज आता है। कितने चेंज किए होंगे उस महोदय ने? दूसरा तरीका फिर से, हाँ सब जगह बिल्कुल, जो सारी चीजें पांचों में सब जगह 4500 पैसे बच सकते थे अगर पूरे सिक्के 50 पैसों के होते, पर बने 3690। 810 की कमी है। 50 का निकालकर 20 का डालिए, नुकसान 30 पैसे का होता है। तो 810 का नुकसान तब होगा जब कितनों का चेंज हुआ होगा? 27 सिक्कों का। तीसरा मेथड, मान लेते हैं कि 90 सिक्कों में x सिक्के किसके हैं? 20 पैसों के लीजिए, क्योंकि 20 पैसा पूछा है। तो 50 पैसों के कितने होंगे? 90 माइनस x। एक सिक्के से 20 पैसे बनेंगे तो 20 पैसों के x सिक्कों से कितने पैसे बनेंगे? 50 पैसों के एक सिक्के से 50 पैसे बनेंगे तो टोटल सिक्कों से कितने बनेंगे? और ये कितना होना चाहिए? क्योंकि पैसों में बात कर रहे हैं, रुपए में 36 रुपए 90 पैसे, मतलब 3690 पैसे। x की वैल्यू निकाल देते हैं। 20x 4500, 50x 3690, 4500 माइनस 30x 3690। इधर लेकर आइए 3690 को, x उधर चला जाएगा, 8
x की वैल्यू आ जाएगी। तीसरा तरीका है 50 टोटल पैसे सिक्के ये बताया था ना उसने 50 पैसों के सिक्के और 20 पैसों के सिक्के। तो ये टोटल 20 से बनने वाले पैसे, ये 50 से बनने वाले पैसे, टोटल पैसे, x की वैल्यू निकाल। ठीक है। चौथा तरीका, इसी को छोटा करके कर रहा हूं। क्या हो गया? नहीं, लाइट तो चल रहा है। अरे वो कर लेंगे, अभी 5 मिनट की वार्निंग देगा वो अभी। ठीक है, अरे घबराए ना। उधर कुछ भी हुआ तो एक्सटेंड, वो पहले मुझे पूछेगा खत्म करने से पहले। वापिस आते हैं। माना थैले में एक सिक्के 20 पैसों के, y सिक्के 50 पैसों, x प्लस y कुल सिक्के कितने हैं? 20 पैसों के सिक्कों से बनेगा 20x, 50 पैसों के सिक्कों से बनेगा 50y। कुल कितना? आपको 20 चाहिए या 50? 50 को रद्द करिए पूरे इक्वेशन में, 50 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 45, या आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, या आ जाएगा 30x 810, x की वैल्यू। नहीं, ये ऐसा लग रहा है आपको, ये मेरी स्पीड के कारण लग रहा है? सबसे बेस्ट दूसरा ही तरीका रहेगा। एग्जाम हॉल में याद ही नहीं आएगा आपको सिक्कों में कि एलिगेशन लगना है। आखिरी तरीका, कुछ भी ना है, बाय ऑप्शन। 27 सिक्के अगर 20-20 पैसों के थे, ऑप्शन में दिया था 27, मान लेते हैं, तो कुल 540 पैसे बनेंगे। ठीक है ना? टोटल 90 सिक्के तुम्हें पता है, 27 अगर 20 के मान लिए तो उसने कितने मान लिए? उसमें 90 में से 27 माइनस कर दीजिए, 63 हो गए ना? तो 63 50 पैसों के, 15 30 5 6 30 6 31, क्योंकि 15 का एक कैरी, केवल 27 मानने पर ही 3690 आ पाएगा। आपको जो बेटर लगे। मैंने 5 तरीके इसलिए दिखाए, बहुत रेयरली होती है ऐसी हवाबाजी करने का मौका कि एक दो नहीं 5, और पांचों पूरी अलग अलग मेथड। ये एलिगेशन है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि भाई सारे मैंने 50 पैसों के मान लिए और फिर उत्तर निकाला। तीसरा वाला एक्स का मेथड है एक वेरिएबल से, चौथा वाला 2 वेरिएबल से, और पांचवा वाला बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन में हमने माना कि 27 सही आंसर था, ए बी सी डी कहीं पर भी होगा, मान लेते ए पर ही था, तो हमने कहा 27 सिक्के अगर 20 पैसे के हुए तो 540 पैसे बनेंगे। फिर बचे हुए सिक्के किसके हैं? 50 पैसों के, वो कितने होंगे? 63। क्यों? क्योंकि टोटल 90 थे, तो 63 अगर 50 पैसों के सिक्के तो 3150 पैसे बनेंगे। दोनों जोड़कर देखो तो 3690 पैसे, मतलब 36 रुपए 90 पैसे। यूपीएससी ने जो सवाल दिया था, मैं बता दूं, आया यूपीएससी का सवाल, वो बहुत घटिया सवाल है। देख लीजिए, आप कहेंगे कि वो तो बाय ऑप्शन से उत्तर आ जाता है। वहां पर लिखना, एक थैले में 75 रुपए हैं जो 50 सिक्कों से मिलकर बने हैं। ए बैग कंटेन 75 रुपीज। एक थैले में 75 रुपए हैं जो 50 सिक्कों से मिलकर बने हैं। ए बैग कंटेन 75 रुपीज which made by the
संख्या ज्ञात कीजिए। ये लिखा ना आपने, एक थैले में 75 रुपए हैं जो 50 सिक्कों से मिलकर बने, जो 1 रुपए और 2 रुपए के हैं। तब बताइए 1 रुपए और 2 रुपए के यहाँ कितने सिक्के हैं? ऑप्शन है 20, 30, 30, 20। तो एक सवाल में तो कोई मेथड वेथड की जरूरत ही नहीं है, जब दोनों ही दे दिए तो सीधा बाय ऑप्शन करो, क्यों टेंशन ले। 1 रुपए और 2 रुपए के, इसमें तो कैलकुलेशन और भी इजी है, मतलब 20 पैसे और 50 पैसे तो ही लगता है सोचने में एक बार। ये आया हुआ यूपीएससी, इसको भी वही 5 मेथड से हम हल कर सकते हैं। जो दूसरा वाला मेथड मैं बता रहा था कि डायरेक्ट उत्तर आता है, कागज पेन की जरूरत नहीं होती। इमेजिन करो पूरे सिक्के 1 रुपए के होते, पूरे सिक्के तो 50 सिक्कों से 50 रुपए बनते। एक बदमाश बच्चा आया, 2 रुपए का सिक्का डाल रहा है, मतलब अच्छा बच्चा आया, 2 रुपए का सिक्का डाल रहा है और एक का निकाल देता है। कितने का फायदा? 1 रुपए का। तुम्हें कितना फायदा कराना है एक्स्ट्रा? 50 रुपए थे, चाहते कितना हो? 75। कितना एक्स्ट्रा चाहते हैं? एक में 1 रुपया का फायदा है, 2 चेंज करोगे तो 2 का फायदा। कितने चेंज करोगे? 25 चेंज करोगे तो 25 का फायदा, मतलब 25 सिक्के 2 रुपए के हो गए, बचे हुए 25 सिक्के 1 रुपए। कर पाएंगे? तो कल हम देखेंगे, कल मतलब मंडे, इसके आगे की बात, क्योंकि एक्चुअल में आज क्लास थी तो ये ज्यादा क्लास लंबी नहीं हो पाई। मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन क्लास है। बाकी नाश्ते का प्रबंध है, ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों के लिए हम ऑनलाइन नाश्ते का प्रबंध कर देंगे, डिजिटल नाश्ता लिख देंगे हैं। तो बिल्कुल आप जब भी आएंगे दिल्ली, आपके लिए प्रबंध रहेगा। और मंडे हम डाउट भी ले लेंगे, मंडे और ट्यूसडे तैयार रहिएगा। हाँ, रिसिप्ट लेकर